حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس سے پہلے والی ویڈیو حضرت یعقوب علیہ السلام میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں زندگی اور اس کے بعد والی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کے قریب تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں کنویں میں گرائے جانے پر ظاہر ہے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تو ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرماتے رہے کہ ادھر سے ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں کنواں نظر آیا تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا چاہا، چنانچہ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام ڈول کی رسی پکڑ کر ڈول میں بیٹھ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے ڈول کو کھینچا، خوش ہو کر بولا کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے، بلکہ وہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس آ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اکثر بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جاتا ہے، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کر دو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھی نہ بھاگ جائے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک شخص نے ان کو خرید لیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا عزیز مصر تھا۔ وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ مصر کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی۔ وہ آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر حیران ہوا، آپ کو خرید کر گھر لے آیا۔ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور بولا اس غلام کو عزت و احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ علیہ السلام کے جوہر نکلنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی سچائی اور دوسری خصوصیات سے وہ متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا آپ علیہ السلام کو مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور جب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنی جوانی کو تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر اور خوب فہم و فہرست عطا فرمائی۔ دوسری طرف جوان ہونے پر آپ کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، آپ کو ورگلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور بولی یوسف جلدی سے میری طرف آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کی طرف لپکی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس کے جال میں آ جاتے اگر آپ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برائی سے محفوظ رکھا، قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں جن کو دیکھ کر وہ گناہ سے محفوظ رہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، عورت ان کے پیچھے بھاگی۔ اس بھاگ دوڑ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، ادھر سے عزیز مصر آ پہنچا۔ اب جب عورت نے اپنے خامد کو دیکھا تو فوراً پینترا بدل کر بول اٹھی بھلا بتاؤ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی سزا دی جائے۔ اس کی بات سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام بولے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت عزیز مصر کا ایک رشتہ دار اس کے ساتھ تھا، اس نے فیصلہ دیا اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب اس بات کا جائزہ لیا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے۔ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ یہ واقعہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ دوسرے امیروں اور وزیروں کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگیں۔ یہ تانے سن کر عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے اس نے عورتوں کو دعوت کا پیغام بھیجا۔ دعوت میں ان سب کے آگے پھل رکھے، ہر عورت کو ایک چھری دی، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے آئے تو ان کے حسن نے انہیں دم باخود کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری تھی، انہوں نے ان چھریوں سے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور پکار اٹھے یہ تو آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو، بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ میری طرف متوجہ نہیں
नहीं हुआ। मैं अब भी कहती हूँ अगर इसने मेरा कहना ना माना तो मैं इसे कैद कर डालूंगी और ये जलील होगा। इस पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है, इसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझे इसके फरेब से नहीं बचाएगा तो मैं इसकी तरफ माइल हो जाऊंगा। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें उन औरतों के मकरो फरेब से महफूज रखा। जुलेखा की खबर दूर तक फैल गई। अजीज मिस्र जानता था कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन अपनी बदनामी के डर से उसने आपको जेल भिजवा दिया ताकि लोग ख्याल करें ज्यादती सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से हुई है और लोग इस वाक़ये को भूल जाएं। इस तरह अजीज मिस्र का आपको जेल भिजवाना अगरचा जुल्म था, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत थी। इस तरह आप उन औरतों से साफ बच गए और उनकी शरारतों से महफूज हो गए। जब आप जेल पहुँचे तो आपके साथ ही 2 और आदमी जेल में भेजे गए। उनमें से एक बादशाह का साकी, दूसरा शख्स बादशाह का बावर्ची था। उन दोनों पर कोई इल्जाम था, इसलिए बादशाह ने उन्हें जेल में भिजवा दिया। जेल में उनकी मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने आपको कसरत से इबादत करते देखा। आपके अखलाक, आदात और अतवार बहुत अच्छे थे, लिहाजा वो दोनों आपसे बहुत मुतासर हुए। उन दोनों ने एक रात ख्वाब देखे और तबीर पूछने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चले आए। साकी ने अपना ख्वाब यूं सुनाया, मैं ख्वाब देखता हूँ कि अंगूर की बेल है, उसकी 3 शाखें हैं, उन शाखों में पत्ते उगे हुए हैं और अंगूरों के गोशे लटक रहे हैं जो पके हुए हैं। मैंने उनमें से उन अंगूरों को लिया और बादशाह के प्याले में निचोड़ कर और उसे वो मशरूब पिलाया। बावर्ची ने ख्वाब देखा कि उसके सर पर 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर वाली टोकरी से खा रहे हैं। उन दोनों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया और उनसे कहा, मेहरबानी फरमाकर हमारी ख्वाब की तबीर बताएं। आपने उनसे फरमाया, मैं ख्वाबों की तबीर के इल्म से बाखूबी वाकिफ हूँ और ये सब मुझे अल्लाह ताला ने सिखाया है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ, उसकी तौहीदकार बंदा हूँ। अपने बाप दादा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम के मजहब पर कार बंदा हूँ। हमें चाहिए कि किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराएं। हम पर अल्लाह ताला का खास फजल है कि उसने हमें हिदायत बख्शी और हमें हुक्म दिया कि लोगों को इसकी तरफ बुलाएं, अल्लाह ताला की तरफ उनकी रहनुमाई करें। फिर आपने उन्हें तौहीद की दावत दी और फरमाया, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम दोनों में से एक अपने बादशाह को मशरूब पिलाने पर मुकर्रा हो जाएगा, दूसरे को फांसी दी जाएगी और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। यह तबीर बावर्ची के लिए थी, जबकि साकी के ख्वाब की तबीर ये थी कि वो अपने ओहदे पर बहाल हो जाएगा और बादशाह को मशरूब पिलाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ उसका फैसला हो चुका था, लिहाजा ऐसा होकर रहेगा। फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से फरमाया, अपने बादशाह से मुलाकात हो उससे मेरा भी जिक्र करना। जब उन दोनों को जेल से निकाला गया तो इसी तरह हुआ जिस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों की तबीर में फरमाया था। साकी अपने ओहदे पर बहाल हो गया और बावर्ची को फांसी दे दी गई। अलबत्ता साकी बादशाह से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। इस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल जेल में रहे। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के बादशाह रेयान बिन वलीद ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा 7 मोटी ताजी गायें हैं, उनको 7 दुबली पतली गायें खा रही है और 7 सब्ज गोशे हैं और 7 खुश्क गोशे हैं। इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे इस ख्वाब की तबीर बताए। तबीर बताने वालों में से कोई बादशाह की ख्वाब की तबीर ना बता सका। तब उस जेल से रिहा होने वाले साकी को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया। वो जेल पहुंचा, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला और उन्हें ख्वाब सुनाकर तबीर पूछी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल मुसलसल खेती बाड़ी करते रहोगे। तुम इस गल्ले को इस तरह इस्तेमाल करो कि बहुत कम इसमें से खाओ और बाकी गल्ला बालों ही में रहने दो। 7 साल इसी तरह करते रहो, फिर इसके बाद 7 साल खुश्क रसाली और कहत आएगा, उसमें गल्ला नहीं उग सकेगा। अब 7 साल तक तुमने जो गल्ला बचाया, कहत रसाली के 7 सालों में उस गल्ले से गुजारा करो। फिर खूब बारिशें होंगी, खूब फसलें उगेंगी, तुम लोग फलों के खूब रस निचोड़ोगे। ख्वाब की तबीर मालूम होने के बाद बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इंक्वायरी करवाई तो उनकी बेगुनाही साबित हुई। बादशाह ने आपको जेल से निकाल कर कहा, मैं आपको अपना मुसाहिब खास बनाना चाहता हूँ। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम राजी हो गए। बादशाह ने हुकूमत का सारा निजाम ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। अब पूरे मिस्र की सल्तनत आपके हुक्म के मुताबिक चलने लगी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हुकूमत के मालिक और मुख्तियार थे। मिस्र के इस बादशाह का नाम रेयान बिन वलीद था और अजीम मुफस्सर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के बाकौल ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। एक रोज अजीज मिस्र की भी वफात हो गई तो बादशाह ने मशवरा दिया, आप जुलेखा से शादी कर लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और जुलेखा से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। इससे आप अलैहिस्सलाम के यहाँ 2 बेटे 1 बेटी पैदा हुई। आप अलैहिस्सलाम ने हुकूमत में आते ही रियाया की खुशहाली के लिए इकदामात शुरू किए। यानी अब बादशाह रेयान के ख्वाब के मुताबिक 7 साल खुशहाली के शुरू हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम उन 7 सालों में गले का ज़िक्रा करना शुरू कराया, लोगों को इसकी तबीर बताई
बताई और उन्हें तबीर पर अमल करने की हिदायत की। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया एक वक्त खाना खाएं। शाही बावर्चियों और दरबारियों को भी एक वक्त खाना खाने का हुक्म था। आप अलैहिस्सलाम खुद भी एक वक्त ही खाना खाते थे। दूसरी तरफ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई जिन्होंने आपको कुएं में गिरा दिया था वो भी कहत का शिकार हो गए। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा तुम मिस्र चले जाओ, वहाँ से गल्ला ले आओ। चुनाचा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गाँव से मिस्र की तरफ रवाना हुए ताकि गल्ला ला सके। गल्ले के सिलसिले में वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। आपने अपने भाइयों को पहचान लिया। उस वक्त उनके साथ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिन्यामीन नहीं थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तुम लोग तो मिस्री मालूम नहीं होते। भाई बोले ऐ रहमे दिल बादशाह, हम लोग कन्नान के रहने वाले और नबी ज़ादे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें। वो एक साथ बोल पड़े ऐ रियाया परवर बादशाह, हम अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अर्ज करते हैं हमने आपकी तारीफ सुनी थी। कन्नान में गल्ले का कहत है इसलिए आपसे गल्ला लेने आए हैं। हम जासूस नहीं, हम तो अल्लाह के नबी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारा और भी कोई भाई है? उनमें से एक ने कहा हम 12 भाई थे। मुद्दत गुजरी, हमारा छोटा भाई जंगल में गुम हो गया था। उससे हमारे वालिद को बहुत मोहब्बत थी। उसके गुम होने से हमारे वालिद की बहनाई पर बहुत असर पड़ा है। उसके बाद वो उससे छोटे भाई से मोहब्बत करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने उसे हमारे साथ नहीं भेजा। यानी वो लोग जिस मकसद के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके बचपन में छुटकारा हासिल करना चाहते थे वो मकसद उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों के गर्ज बेचकर भी हासिल नहीं हुआ था। अब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटे बिन्यामीन पर ज्यादा तवज्जो देने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया वापसी तक ये लोग शाही मेहमान हैं। अब आपने उन्हें उनके हिस्से का गल्ला देने का हुक्म फरमाया। गल्ला उनके ऊँटों पर लाद दिया गया। उन्होंने कहा हमारे छोटे भाई के नाम का गल्ला भी दे दीजिए तो मेहरबानी होगी। आपने फरमाया आइंदा तुम गल्ला लेने के लिए आओ, अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ ले आना। और तुमने देख ही लिया है कि मैंने तुम्हें कितना गल्ला दिया। ये बातें आपने उन्हें इस बात की तरगीब देने के लिए कही कि वो अपने सौतेले भाई को भी साथ ले आए। साथ में आपने सख्त अल्फाज में उनसे यह भी फरमाया अगर तुम उसे साथ ना लाए तो इस सूरत में तुम्हें हरगिज गल्ला नहीं दूंगा, बल्कि तुम मेरे पास भी ना आना। आपने खादमों से कहा ये लोग गल्ला खरीदने के लिए जो कुछ साथ लाए हैं वो इन्हें बताए बगैर उनके सामान में ही रख दो। आपके भाई कन्नान पहुँचे, उन्होंने अपना सामान खोला तो सारी जमा पूंजी भी गल्ले में मिल गई। अब उन्होंने सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को सारा हाल सुनाया। कुछ मुद्दत बाद गल्ला फिर खत्म हो गया। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा तुम एक बार फिर मिस्र जाकर गल्ला ले आओ। उस पर उन्होंने कहा अब्बा जान, जब तक हम बिन्यामीन को साथ नहीं ले जाएंगे हमें गल्ला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर तड़प उठे। आप पहले ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहते। रोते रोते आपकी आंखें सफेद हो गई थी, बनाई जा चुकी थी। चुनाचा आपने उनसे कहा बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मुझे तुम्हारा इतबार नहीं, तुमने पहले भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में धोखा किया था। इस पर उन्होंने कहा अब्बा जान, हमें गल्ले के साथ हमारी पूंजी भी वापस मिल गई है, हमें और क्या चाहिए। इस भाव गल्ला क्या बुरा है, बस आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की। अच्छा तुम मुझे अहद दो कि बिन्यामीन को सही सलामत मेरे पास ले आओगे। उन्होंने अपने वालिद से अहद कर लिया। तब आपने उन्हें हदायत की देखो सब एक ही दरवाजे से मिस्र में दाखिल ना होना, बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से शहर में दाखिल होना। मैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का ही चलता है। मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। आखिर वो कन्नान से रवाना हुए और मिस्र में इसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके वालिद माजिद ने हदायत की थी। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म को कौन टाल सकता है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन समेत जब आपके दरबार में पहुंचे, आपने बिन्यामीन को पहचान लिया। आपने उन्हें अपने बिल्कुल करीब बैठाया और खुफिया तौर पर उन्हें बता दिया कि वो यूसुफ हैं। बिन्यामीन ये सुनकर हैरान रह गए, बेहद खुश हुए। लेकिन आपने उनसे फरमाया अभी ये बात अपने भाइयों से ना बताना। आपने अपने खादमों को हदायत दी जब तुम उनके ऊँटों पर गल्ला ला दो तो मेरा प्याला बिन्यामीन वाले गले में रख देना। आप इसी प्याले से गल्ला दिया करते थे। जब भाइयों का काफिला रवाना हुआ तो आपने अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेज दिया। उन्होंने काफिले को रोक लिया और कहा ऐ काफिले वालों, तुम चोर हो। बरादरान यूसुफ सिपाहियों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा हम पर ख्वामख्वाह क्यों इल्जाम लगाते हो, आखिर मालूम तो हो तुम्हारी क्या चीज गुम हुई है। सिपाही कहने लगे बादशाह का प्याला गुम हो गया है और जो शख्स चोरी का पता लगा देगा उसको एक ऊँट गल्ला इनाम में मिलेगा और मैं इस बात का जामन हूँ। तुम प्याला वापस कर दो, बदले में तुम्हें एक ऊँट गल्ले का मजीद दिया जाएगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ऐलान सुना तो जवाब में कहा तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद
फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। सिपाहियों ने कहा, अच्छा अगर तुम चोर साबित हुए तो तुम्हें क्या सजा दी जाए? जवाब में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोले, चोर की सजा यही है कि हम उसे आपके हवाले कर देंगे। शरीयत इब्राहिमी में चोर की सजा यही थी, वो 1 साल के लिए सामान के मालिक की गुलामी करे। आखिर उनकी तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी लेने वालों ने बिन्यामीन की तलाशी लेने से पहले बाकी भाइयों के सामान की तलाशी ली, और जब बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली गई तो प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। और ये सब कुछ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से किया था, क्योंकि उसके नतीजे में बहुत बड़ा फायदा हासिल होने वाला था, यानी आपके वालिद और खानदान वाले आपके पास पहुंचने वाले थे। जब प्याला बिन्यामीन के सामान से मिला तो उनके भाई बोल उठे, अगर इसने चोरी की है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी करता था। उन्होंने आपकी मिन्नत समाजित की कि बिन्यामीन को उनके साथ जाने दिया जाए, उनके वालिद बूढ़े हैं, आप उसके बदले में हम में से किसी को रोक लें। इस पर आपने फरमाया, तब तो ये जुल्म होगा, हम तो उसी को पकड़ेंगे जिसने जुल्म किया। अब उन्होंने आपस में मशवरा किया। सबसे बड़े भाई ने मिस्र ही में ठहरने का फैसला किया, बाकी भाइयों को वापस भेज दिया। इस तरह ये लोग बिन्यामीन बड़े भाई रबील के बगैर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। बेटों ने वापस जाकर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को सारी बात सुनाई, साथ ही में अपनी सफाई के लिए कहने लगे, आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहाँ हम थे, इस काफले वालों से पूछ लें जिनके साथ हम आए हैं, और यकीन माने हम सच कहते हैं। आपने अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रहते हुए बेटों को फरमाया, तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है, अब सब्र ही बेहतर है। मतलब ये कि आपको उनकी बात पर यकीन नहीं आया था। फिर आपने फरमाया, करीब है कि अल्लाह ताला इन सब यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन और सबसे बड़े भाई रबील को मेरे पास पहुंचा दे, वही इल्मो हिकमत वाला है। प्यारे बेटे की जुदाई में जो हाल है अल्लाह उसको खूब जानता है, और अल्लाह जो कुछ करता है, जो फैसले फरमाता है, वो हकीकत पर मबनी होते हैं। नए गम की वजह से उनका पुराना गम भी ताज़ा हो गया। उन्हें हद दर्जे गम ज़दा देखकर बेटों ने कहा, अगर आप इसी तरह यूसुफ को याद करते रहे तो आपका जिस्म लागर हो जाएगा और ताकत खत्म हो जाएगी, इसलिए आप हौसला करें। जवाब में आपने फरमाया, मैं तो अपने परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह से ही करता हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। ये फरमाने के बाद उन्होंने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो तुम लोग जाओ, यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही नाउमीद होते हैं। इस पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई एक बार फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। क्या तसल्ली ने उन्हें अलग परेशान कर रखा था। आपके सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, ऐ अजीज, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी मुश्किल का सामना है। हम सरमाया भी बहुत थोड़ा सा लाए हैं, लेकिन हमें इसके बदले में पूरा गल्ला दिया जाए और खैरात कीजिए। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को सवाब अता फरमाता है। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खत भी दिया। यह खत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम लिखा था। इस खत का मजमून कुछ यूं था, ऐ अजीज मिस्र, हमारा पूरा खानदान इन बलाओं और आजमाइशों में जा पहुंचा है। मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया, फिर एक बेटे की गुमशुदगी के जरिए मेरा इम्तिहान लिया गया। वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब था, यहाँ तक के उसकी जुदाई के सदमे में मेरी बनाई जाती रही। इसके बाद इसका छोटा भाई बिन्यामीन मुझे गम ज़दा की तसल्ली का सामना था। इसे आपने चोरी के इल्जाम में रोक लिया, और मैं बताता हूँ हम औलाद अंबिया है, ना हमने कभी चोरी की, ना हमारी औलाद में कोई चोर हुआ। भाइयों की ये बात सुनकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की हालत पहले ही बदल गई थी। ये खत पढ़कर आप अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से दरियाफ्त फरमाया, तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या किया था जब तुम नादानी में मुब्तला थे। ये सुनकर वो चौंके, गौर से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगे। आखिर उन्होंने अंदाजा लगाया और बोले, क्या तुम यूसुफ हो? आपने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ। ये कहते हुए आपने बिन्यामीन की तरफ इशारा किया और फरमाया, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह नेक लोगों का अजर जाया नहीं करता। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मारे शर्म के जमीन में गड़े जा रहे थे। सारी सूरत हाल उनकी आंखों के सामने थी। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुम्हें हम पर फजीलत दी है और बेशक हम खताकार हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर थे, चुनाचा पैगंबर ना अखलाक का मुजाहरा करते हुए उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, जाओ तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो बहुत मुआफ करने वाला है और बहुत रहम वाला है। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को मुआफ ही नहीं किया, बल्कि मुआफ करने के साथ साथ अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ भी फरमाई, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। आप अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से जुदा हुए 46 साल हो चुके थे। आप अलैहिस्सलाम अपने भाइयों
को अपनी कमीज देते हुए फरमाया, ये मेरी कमीज ले जाओ, इसको वालिद साहब के मुंह पर डाल देना, उन्हें दिखाई देने लगेगा, फिर तुम अपने अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। एक बार फिर ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ। इधर काफिला रवाना हुआ, उधर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर तुम ये ना कहो कि बुढ़ापे से मेरी अकल में फर्क आ गया है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। घर वाले बोले, आपको तो बस हर वक्त यूसुफ का ही ख्याल रहता है। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, क्या कहते। आखिर काफिला आ पहुंचा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर में दाखिल हुए। उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन पर डाल दिया। उनकी आंखें रोशन हो गई। अब उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है? मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस सिलसिले में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है, जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो एक हवा चली। उस हवा ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई। जब उन्होंने फरमाया था, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुमने यूसुफ को किस हाल में पाया? यहूदा ने जवाब दिया, पूरे मुल्क में छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता है, सब उनकी तारीफ करते हैं, और अब तो वो मिस्र के बादशाह हैं, वो दीन की बेहतरीन हालत में हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुतमिन हो गए। अब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने वालिद से कहा, ऐ हमारे अब्बा जान, हमारी गुनाहों की अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम ही खतावार थे। बेटों की दरख्वास्त पर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की खता माफ फरमा दी। फिर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे खानदान को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये इतला लेते रहे कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे या नहीं। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम के इस्तकबाल के लिए मिस्र से निकले। इधर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के दरवाजे पर पहुंचे। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का शानदार इस्तकबाल किया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले से लगाया। ये मुलाकात 46 साल की जुदाई के बाद हुई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा अपने वालिद और अपने भाइयों का तारुफ सबसे करवाएं। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने दरबारे आम लगाए जाने का हुक्म दिया। एक ऊंचा चबूतरा लगाने का हुक्म दिया। चुनाचा एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया। इस पर इन सब हजरात को इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया ताकि सब लोग उन्हें देख लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दरबार में दाखिल हुए तो उस वक्त के तरीके के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। ये देखकर वालिद और भाई भी सजदे में गिर गए। इस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन के इस ख्वाब की तबीर पूरी हुई जो आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया था। चुनाचा वो बोल उठे, ऐ अब्बा जान, ये है मेरे ख्वाब की तबीर। मैंने जो ख्वाब देखा था अल्लाह ताला ने उसे सच कर दिखाया। उसने मुझ पर बहुत आसान किया, मुझे जेल से निकाला, फिर आपको गाँव से यहाँ लाया। बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब बरीक बीनी से जो चाहता है तबीर करता है। बिलाशुबा वो नहायत दाना और हिकमत वाला है। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि जो सजदा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने और उनके दरबार में उन्हें किया वो ताज़ीमी सजदा था। ऐसा सजदा उसकी शरीयत में जायज था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ऐसा सजदा हराम है। अल्लाह ताला ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। आप वालिदैन के साथ और घर के तमाम दूसरे अफराद के साथ फिर मिलकर रहने लगे। कुछ अरसे बाद सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी मैयत पर खुशबू लगाने का हुक्म दिया। फिर उनकी मैयत को अबरून ले आए, उन्हें उस गार में दफन किया जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन हबशी से खरीदा था। फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ पहुंचा। आपने मिस्र ही में वफात पाई। वफात के वक्त आपकी उम्र 110 साल की थी। वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत फरमाई, जब मेरी वफात हो जाए और बनी इसराइल सरजमीन फलस्तीन में जाकर आबाद हो तो मेरी लाश को मिस्र में ना छोड़े, बल्कि मेरे आबाई वतन कन्नान में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और दादा इसहाक अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर दफन करें। जब आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के किनारे दफन किया गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से लेकर चले तो बाजरिया वही इन्हें हुक्म हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म निकाल कर अपने साथ ले जाएं और इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें बाप दादा के पास दफन करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म मिला तब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का पता चलाया। फिर कब्र खोद कर तबूत निकाल कर अपने साथ ले गए और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया।